आजकल चर्चा चल रही है बैन बॉलीवुड, ख़त्म करो बॉलीवुड माफिया को। और यू नो आई एग्री विद इट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट। बैन बॉलीवुड, नॉट बिकॉज ऑफ what is happening in people's personal lives, but because of the content that Bollywood is churning out. कुछ साल पहले मैं almost Bollywood को give up कर चुका था, 4 या 5 साल पहले I'd switched off, I'd stopped watching Bollywood films। साल में 5 या 6 फिल्में देखता था, and that too very carefully, because बार बार मेरे साथ धोखा हुआ है। सिनेमा में जाता हूँ, ट्रेलर देखता हूँ, ऐसा लगता है कि wow, this film is going to be amazing, और कचरा सामने आता है, but it's coming back. It is definitely coming back, or I'll have to reconsider what films I'm reviewing, what sort of content I'm watching, because लोगों का टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, इस ज़माने में जब इतना ज़्यादा कंटेंट है देखने के लिए, तो everyone's becoming wise, even if सब कुछ सस्ता है OTT पर और so many options are there, but you don't want to watch content that is disappointing, और खुदा हाफिज़, I think it is disappointing. I'm not going to give it more than 2.5 out of 5, और let's discuss. देखो, प्रॉब्लम स्टोरी में है, और काफ़ी ही कन्वीनियंटली रिटन है। जब चाहे ऑडियंस का मतलब मजाक उड़ा लो या टेक द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर फिल्म की थीम ऐसी हो कि इट टेक्स द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड एंड देयर इज़ ह्यूमर एंड देयर इज़ एग्जैजरेशन, सब चलता है। लेकिन जब आप ऐसी फिल्म बनाओ जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व हो, वो भी एक इंटरनेशनल सेटिंग में, वो भी एक अरब कंट्री में, तो यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू मेनी लूज एंड्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लूज एंड्स हो गए तो अनफॉर्चुनेटली द audience will pick holes very quickly. But anyway, let's discuss the movie in depth. स्टोरी तो ट्रेलर में ही आप लोगों ने देख ली होगी कि विद्युत जम्वाल की बीवी फॉरेन कंट्री में जाती है, और then she goes missing, and how Vidyut goes to that country and tries to get her back. That's pretty much the story. It's very similar to Baghi 3, उसमें उसका भाई at a high level, overseas में अटक जाता है, वो भी एक अरब कंट्री में, and how Tiger Shroff goes and tries to rescue him. So similar theme there. जो topic that they wanted to touch, and they have touched quite well, the relationship and the emotional trauma that an individual goes through when his or her loved one gets lost and or kidnapped. It's very traumatic, or that is very strong in this film. काफ़ी emotions काफ़ी अच्छे दिखाए हैं। Vidyut Jamwal की acting is fantastic. I don't know the actress's name, but she's done a good job as well. उसका रोल इतना ज़्यादा है नहीं इस मूवी में। And then the third biggest role, or the second biggest role, is अनु कपूर। उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है इस मूवी में। But once again, as I said, जो story है that disappoints, और लेट्स गेट इनटू अ बिट मोर डिटेल। 2-3 चीज़ें मुझे मूवी की अच्छी लगी, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विद्युत जम्वाल वाज फैंटास्टिक इन दिस फिल्म, और दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज इट केप्ट यू हुक्ड एंड इट केप्ट यू इंटरेस्टेड। समटाइम्स बैकग्राउंड म्यूज़िक हैज़ दैट पावर टू एंगेज यू, एंड दिस फिल्म हैज़ दैट राइट। और इनिशियली मुझे तो 1 घंटा लगा, द बिल्डअप वाज एक्चुअली क्वाइट गुड एज वेल। आई वाज क्वाइट एंजॉइंग इट, लेकिन द क्रैक्स स्टार्टेड ओपनिंग pretty quickly and pretty earlier on. Story की मैं बाद में बात करता हूँ। In fact, एक spoiler section होगा towards the second half of this review, जो I'll discuss it in detail and length. But if you haven't watched the film and you are planning to watch it, then I suggest you skip that part. इस मूवी में एक्शन बहुत कम है। ट्रेलर में लगा था कि wow, this is another Vidyut Jamwal film, there's going to be a lot of action, a lot of martial arts, लेकिन मूवी में एक्शन बहुत ही कम है। In fact, Vidyut plays a software engineer, and I don't know why he plays that character, because you don't get to see that profession being played out that much in the film, or he's just a normal citizen, no martial arts background whatsoever, so the fight scenes are shot accordingly. But from an action point of view, if you are thinking this film's going to have a lot of action, you will be disappointed. But anyway, even if you keep away the action and say, okay, yes, trailer promised something and you got something else, let me tell you the biggest issues. The biggest issues are the following. 1, you're going into an Arab country. चलो ठीक है, तुमने नाम fictitious बना दिया, लेकिन उस अरब कंट्री में सब लोगों को हिंदी आती है। complete turn off. 1-2 लोगों को हिंदी आती है, या कोई ट्रांसलेटर हो तो I can understand, but everyone is talking in Hindi.
डिसअपॉइंटिंग। कोई विलन नहीं है, यू नो, विलन्स आर बाउंसिंग बैक। कभी ये बंदा विलन होता है, उसके बाद कोई और विलन आ जाता है। आई थिंक इन टोटलिटी 3 विलन, डिस्टिंक्ट विलन्स मुझे इस फिल्म में दिखे, और उनका रोल 5-10 मिनट का ही है टोटल में, एक बंदे का थोड़ा ज़्यादा है। तो उस मामले में नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विलन, यू नो, यू जस्ट सीम टू बी गोइंग अराउंड इन सर्कल्स एज फार एज द हीरो इज़ कंसर्न्ड। तो वो मुझे कुछ खास लगा नहीं उस मामले में। And the third thing which I have said before is just the convenience of it all. सब कुछ बस अपने आप हो जाता है, और एंड में आप मूवी देखो, इट्स obviously a happy ending, but they kind of play around with your emotions. कुछ सीन्स में ऐसे दिखाते हैं कि ये हो चुका होता है, फिर बाद में दिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होता, you know, hodge podge. So completely जब स्क्रिप्ट आपको misdirect करती है genuinely, blatantly, तो you feel like you've been rejected, और you know, that was obviously the weakest part according to me. अब आते हैं स्पॉयलर्स को लेकर। तो स्टोरी तो चलो क्या है स्टोरी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने जॉब्स लूज़ कर देते हैं ड्यूरिंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2-3 महीने तक धक्का मारी खाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। दोनों एजेंट के पास जाते हैं जो इंटरनेशनली नौकरियां ढूंढता है, तो वो जुगाड़ करता है और बीवी को जॉब पहले मिल जाता है, और पति को बोलता है कि तुम्हें 4 या 5 दिन बाद जॉब मिल जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ऑब्वियसली बीवी पहले जाती है, और चलो ठीक है चले जाती है। फिर सडनली एक कॉल आता है, बीवी बोलती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। अब बीवी को बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में बीवी फंस जाती है। अब ये समस्या समझ नहीं आई कि बीवी को एक्चुअली फ़ोन कैसे मिलता है कॉल करने के लिए, बट बेसिकली मिल जाता है। चलो ठीक है, किसी न किसी तरह उसको नंबर मिल गया, उसने कॉल कर लिया। सो बिट ऑफ अ इशू देयर। बाद में विद्युत कंफ्यूज हो जाता है, एजेंट के पास जाता है। एजेंट सरप्राइजिंगली उधर ही होता है और बोलता है मुझे कुछ पता नहीं है, एंड ईज़िली दे यू नो, वो बोलता है चलो ठीक है मैं खुद ही जाके देख लूँगा, मुझे मेरी टिकट करवा दो। और बाद में जब वो चले जाता है ओवरसीज़, तो पता चलता है कि एजेंट को पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया और अब एजेंट लापता है। लाइक दैट इज़ पुअर। जब एजेंट कम्प्लीटली शामिल है इस चीज़ में, ब्लेटेंटली ऑब्वियस है, तो हाउ कैन यू जस्ट लेट हिम गो। बट एनीवेज विद्युत अब नोमान पहुंचता है, जो कंट्री का नाम है, अरब कंट्री का नाम है, और वहाँ पे उसको एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। तो उसकी मदद से यू नो ही ट्राइज़ टू फाइंड हर। टेली कम्युनिकेशंस कंपनी जिससे उसकी बीवी ने कॉल किया था, बेसिकली 15-20 मिनट के बाद पता चलता है कि यू नो ये तो इस बंदे का है, और पता चलता है कि ही बेसिकली ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। चलो ठीक है, अभी टैक्सी ड्राइवर अनु कपूर और विद्युत दोनों, सिर्फ 2 जन जाते हैं बीवी को लेने। सरप्राइजिंगली दे फाइंड हर, एंड व्हेन दे फाइंड हर बीवी ऑब्वियसली गेट्स इमोशनल, और पता चल जाता है कि यू नो ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं। तो देयर स्टार्ट्स अ बिग मैसिव फाइट ओवर देयर। अभी तुम सिर्फ 2 लोग क्यों गए हो, वाई नॉट बैक अप, वाई नॉट यू नो मैनी अदर पीपल। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है बेसिकली हाथापाई होती है, बीवी वहीं रह जाती है, और अनु कपूर और विद्युत किसी न किसी तरह करके भाग जाते हैं वहाँ से। खूब मारामारी होती है। चलो ठीक है, पहुँचते हैं ये इंडियन एम्बेसी। अभी इंडियन एम्बेसी बोलता है मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ के तो जो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वही तुम्हारा केस सॉल्व करेंगे। अभी लोकल बंदा आता है, यू नो थोड़ा शेडी कैरेक्टर होता है उसका, उसको एक 2-3 मिनट के लिए विलन टाइप रोल दिखाते हैं उसका। बाद में उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो अच्छा आदमी है, वो विद्युत की हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करने लग जाता है उसकी। टुवर्ड्स द एंड दिखाते हैं कि वो एक्चुअली विलन था। अभी ये ड्रामा क्यों चल रहा है भाई? देयर वाज अ क्लियर अपॉर्चुनिटी फॉर दैट गाय टू किल विद्युत एंड विद्युत टू किल हिम, लेकिन एक दूसरे को मारते नहीं है। बट एनीवेज दे कन्वीनियंटली हेल्प ईच अदर आउट। प्रीटी बैड। अब ये बात पता चल जाती है ऑब्वियसली गुंडों को कि विद्युत और पुलिस को पता लग गया है कि यू नो ये तो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, चलो बीवी को मार देते हैं। तो अब 20 मिनट तक ये ड्रामा चलता है कि बीवी मर गई। उसे एक लाश मिलती है जो पूरी बर्नट होती है, उसके ऊपर वो नेकलेस होता है बीवी का। तो विद्युत को लगता है कि हाँ बीवी मर चुकी है, तो उसको दफना वफना देता है। खूब रोना धोना होता है ज़ोरों शोरों का। और जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है लोकल बंदा, वो कहता है तो अब तू घर चले जा, लेकिन हम तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे।
लेकिन एयरपोर्ट से वो भाग जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो अब पता लगाऊंगा कि किसने मेरी बीवी को मारा है, और उसको एक्चुअली उनको पता होता है किसने मारा है। अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसको ख़त्म करूंगा। चलो ठीक है, एयरपोर्ट से भाग जाता है, उसके पीछे चले जाता है। अभी खूब मारपीटी होती है। वो बड़ा डबल साइज्ड है विद्युत का। टेक्निकली विद्युत मार्शल आर्ट सिस्टम में उसको आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल में ले आता है। और अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वहाँ पे पता चलता है कि वो जो इंस्पेक्टर है वो एक्चुअली फ्लिपर है। वो कभी हीरो है, कभी विलन है, कभी साइड हीरो है, जो भी है। और वो दूसरे इंस्पेक्टर, जो एक और इंस्पेक्टर होती है, उसको मार देता है। लेकिन विद्युत वहाँ से भी किसी ना किसी तरह करके भाग जाता है। और फिर ये आते हैं सुल्तानत के पास। पता नहीं कहीं कहाँ है ड्रामा यार, समझ नहीं आता मुझे। बट बेसिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब विद्युत अपने बीवी के कातिल को मारने जा रहा होता है, उसको पता लग जाता है कि बीवी ज़िंदा है। तो झटका लगता है उसको कि हाँ मेरी बीवी ज़िंदा है। एक वैन में छुपी होती है कार पार्किंग लॉट में, ऐसे ही मिडल ऑफ अ डेजर्ट में तो वहाँ पे ट्रक वो विद्युत ड्राइव करके 3-4 गाड़ियाँ उड़ा के जो सुल्तानत है, जो बड़ा प्रेसिडेंट है या पता नहीं चीफ पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर जो भी है, उसके पास चले जाते हैं। और उस बंदे को पता लग जाता है कि जो इंस्पेक्टर है वो एक्चुअली गुंडा है। वो भी एक अजीब किस्सा है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, लैपटॉप का टाइम हो गया। ऑल एंड ऑल खूब ड्रामा होता है, लेकिन पॉइंट क्या है, लॉजिक क्या है, ज़्यादा ध्यान मत दो। जो तुम्हें दिखा रहे हैं जस्ट टेक इट इन एंड तालियां बजाओ। IMDb पर 8 रेटिंग, बताओ, 8 रेटिंग दे रखी है। जो अभी क्या बोलूँ मैं। एनीवे, लुक एट द रेटिंग। अभी दिखाता हूँ तुम्हें रेटिंग। You can pretty much ignore all the 10s and the 1s because those are fanboys and hate clubs. बाकी का एवरेज निकालो तो weighted average तो score अभी this is what it comes out to. And even this is not legit. Yeah, let me tell you, over time rating obviously थोड़ी कम होगी, but who cares? The point I'm trying to make is, I don't know why they made this film. Yes, they wanted to explore the angle of human trafficking and how much a husband loves his wife, but that's about it. That is about it, guys. I do not recommend watching and wasting 2+ hours on this film. Sorry. Anyway, I'll see you in the next one.